Okay. Good morning, students. Am I audible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. And screen is visible, right? Yes, ma'am. Okay. So, good morning. Let us start. So, today's topic is your network diagram only, continuation of the network diagram. But here now we will go into the problem. Okay, how to solve different numericals, which will be coming from this chapter, and those are very important also. Okay, both for in as per we can see here it is basically all numerical questions will be coming from this question this chapter, but you might be given some mcqs also. Okay, so before solving those mcqs, it is based on numerical question, so you need to clear your idea about that topic, right? So we will be discussing here one term which is very important. This is the critical path. Okay, so what is critical path? Now, in order to determine what are the different procedure or what are the different methodologies to determine the critical path, okay, so before starting that one, we must have idea about these two topic. Okay, this is your earliest start time and latest completion time. Okay, so as per the name suggests that it is actually the time when you start your project as early as possible. Okay, and what is the this one means it is also the time taken to complete the project or an activity. Okay, without any delay in the whole overall project completion duration. Okay, so that is the latest completion time. Okay, we will see in details, we will be learning. And depending upon these two thing or these two topic, we need to calculate slack. Okay, and once we get this slack value, we can easily identify that which activity is the critical activity, and if we identify those critical activities, then we can easily identify which path is the critical path. Okay, so determination of the critical path by slack method. Let us see how much we can complete. Okay, see here, this is your tail event, this is your head event. Tail event means what? All the activities will start from this event, and head event means what? All the activities in the project will finish or will end at this event. Okay, so this is the starting event of the whole project network, and this is the finishing event of the whole project network. Whereas this 3 2 5 6, these events are basically the dual role event. Okay, because see here, here this arrowhead as well as the tail of this arrow, okay, has been attached with this event, so it is acting like a dual role event. Say for example, this is your birth and this is your death. So birth will happen once in a life, death will happen once in a life. Okay, whereas in your whole life there will be several other activities as well as events, okay, which will be acting in between this birth and this death. Okay, similarly the whole project network should also have one starting event or the tail event and one head event, that we have known from the rules of the network diagram. Now see, in order to see, we are starting from 1 and we are ending at 9. Okay, see all the activities or the path, there are several paths of reaching from 1 to 9. How we can travel? See, from 1 to 9 we can travel in several paths, sorry, in several paths. Okay, say for example, this is your one path A. Okay, 1 to 3, 3 to 5, 5 to 8, 8 to 9. This is a wait, see,
let us give it a yellow color. Okay, see, this is one path. Okay, path 1. See, in a path there are several activities. Actually, path consists of several activities. So in this yellow path, how many activities are there? We know activity is denoted by an arrow. Okay, so tell me, in this path how many arrows are there? 4. 4. So this 4 activity comprises one path. This path, yellow path, comprises of 4 activity: A, E, J and N. Okay, similarly there are other path also. See this one. Okay, 1 to 4, 4 to 7, 7 to 9. Okay, so there are how many activities? 3 activities. And this red color here also one path. Okay, see here it is red. So this is also another path. Okay, we can find many paths, but we need to identify which path is the longest path. Why longest? What is our motive? What was our objective or the aim of the project management? To complete the whole project duration in a given period of time, or in a stipulated time period, right? That was the aim. We must not say, for example, the whole project should be completed within 1 year. Okay, so we have to complete that project within the 1 year itself. There may be delay, but it should be very minimum. Okay, so that is our main aim, how to minimize the delay, or we can say there will be no delay and we can complete the whole project within the 1 year only. How to manage this? That is the main aim of the project management. Okay, now with the help of this network diagram, we can easily do that. We can easily identify what is the total project duration. Okay, this is, for example, this whole project network consists of only 3 paths. Okay, other part we are neglecting. So it consists of yellow, red and green path. Okay, now the time taken to complete the project, or the time taken to complete this path, is actually the project duration only, right? Say for example, if you travel from this path, see, this is your home, this is your college. Okay, now you're traveling in this path, yellow path. Okay, so it will take some time. Okay, if you are traveling from this green path, it will take some another time. Okay, another value. And if you travel from this red color path, it will take that another time. Okay, so 3 students started from this origin and they have to come in this destination is same, which is the BBIT college. Okay, so from your locality 3 students started and they are using different paths. Okay, different route. So one travel from this yellow, another travel from this red, and a third person travel from this green path. Okay, but you have to reach the college within 10 a.m. only. Okay, because after 10 a.m. nobody will be allowed. Okay, so how we will manage? So what should be the maximum time taken? That we have to estimate first. Okay, if we travel from this path, then what is the time? Calculate that time. If we travel from green path, then calculate the time. Okay, as well as if we travel from this red color path, we have to calculate the time. Okay, now we have to see that which path, in which path, if you follow this yellow path or red path or green path, in which path you will take longest time, that you need to calculate, right? Say for example, this yellow path is taking 2 hours. Okay, so this yellow path is taking 2 hours. Okay, this green path is taking 1 hour, whereas this red path, it is taking 4 hours. Okay, 4 hours. Okay, now tell me which path will be critical for you? In common Red. sense, red. Why? If by chance if by chance there is some delay in this path, okay, so you cannot reach the college within that time period. That is within 10 a.m. Before 10 a.m. you cannot reach the college if there is any delay in this red part. Okay, so you have to manage in such a way that you will reach here at least at before 10 a.m. right? So that's why this path is what? This is the critical path. And whereas this person
if there is any kind of delay also he can manage, because he is reaching this destination 2 hours earlier, and this person who is traveling from this green path, he has extra 3 hours in his hand. Okay, so if he's there is any delay in any of his this path, then what happen, he can manage that, because he have extra 3 hours with him, right, in his hand, before reaching the college. But if you follow this red path, then this is very critical for you. You cannot make any delay. Okay, you cannot waste your time in the route. You have to reach that within during this 4 hour only, because after 4 hour this college gate will be closed for you. You cannot enter the college. Okay, similarly in the project also we have to identify several paths, and we have to see that which path is taking the longest path. Okay, longest duration. Then we will consider that longest path as the critical path. Why critical? If there is any delay by chance, then there will be whole project will be delay. Okay, whole project will be delayed. If there is delay in this activity, any activity in this part, then the whole project duration will be delayed. Okay, whereas if there is any delay in this yellow part, it can be managed. Okay, so this is the funda of your, or the basic concept of your critical path. Critical path is actually nothing but what it is. The it comprises of several activities. Okay, first we need to identify which activities are the critical activities, and if we add up those activities, then we will find a path which is known as the critical path. Clear? Clear? Yes, ma'am. Okay, so how we will identify? Okay, so before determining that critical activity, we have to have idea about these two terms, which is earliest start time and latest completion time. Okay, then only we can identify. Okay, that particular activity is critical activity. Okay, so what is critical part? It comprises of an activity or the event. If they are delayed, then the whole project will be delayed. Okay, so critical path is actually what the longest path, or we can say the longest length of time it will take. Okay, and it is very useful in helping to manage any project. How we can manage? See, this is an activity. Okay, this is another activity. If in during this activity, if there is any say for example any error, okay, whether it may be manpower error, whether it is machinery error, then what we have to do, we have to put resources here. Okay, extra resources, so that we can complete this B activity within the 5 days only. Okay, we cannot delay this activity. If the duration of this activity is 5 days, then we have to complete that activity during 5 days only. Now how we will complete? If the machine is, or the equipment that we are using in this activity, if it doesn't work, if it's suddenly shut down, then what happens? We have to provide extra machineries. Okay, if there is any accident, okay, then what happens? Then we have to provide extra labor in this activity. Okay, so that way we have to manage. That means we have to complete this in the 5 days only. That is our main motive. Now how we can complete? For that you have to manage. Okay, that is the purpose of, or the objective of the project management only. Okay, so these are the critical path. Now before starting this, we must know what are the different time. Okay, see, early start time, it is what? It is the earliest time, earliest time the activity can begin. Now please go through this. Okay, late start time. Late start time means what? It is the latest time the activity can begin. Say for example, I am giving you an assignment. Today is Tuesday. Okay, Tuesday I said, okay, I am giving you assignment, and the duration of that assignment is, say for example, 7 days. Okay, that means in next Tuesday you have to submit that assignment. Okay, now what is the earliest start time of this assignment? You have been assigned a project or assignment. Now at when you will start this? As early as possible. When you will start to do assignment? As early as possible. सपोज आज तुमको मिला है, ठीक है, और नेक्स्ट ट्यूसडे को सेम, मतलब यही जो डे है इसमें तुमको सबमिट करना है। देन जितना जल्दी हो सके तुम कब स्टार्ट करोगे प्रोजेक्ट को? नेक्स्ट डे। नेक्स्ट डे। आज मिला तो आज ही करोगे ना? हाँ। कोई कोई होता है ना कि आज मिला, चलो आज से स्टार्ट करते हैं,
दैट मीन्स 0th डे। आज अगर है तो 0th डे हम लोग बोलेंगे इसको, ठीक है, 0th डे, ठीक है। नेक्स्ट डे को फर्स्ट डे बोलेंगे, मतलब 1 डे 2 डे ऐसा करके। सो 0th डे से तुम स्टार्ट करोगे, दैट मीन्स टाइम विल बी 0। ओके, स्टार्टिंग टाइम विल बी 0, मतलब आज से तुम एकदम स्टार्ट करोगे। दैट इज द अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम। क्लियर? अब लेट स्टार्ट टाइम मतलब है कि तुम कितना धीरे सुस्ते आस्ते करके तुम अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट करोगे, असाइनमेंट। तुमने बोला अच्छा 7 डेज है, बहुत दिन है, हम आराम से करेंगे, ठीक है। तो लेट से लेट कब स्टार्ट करते हो, दैट इज द लेटेस्ट स्टार्ट टाइम। बट इतना लेट मत करो कि तुम्हारा सबमिशन ही ना हो पाए, ठीक है। तो उसको लेट नहीं, उसको हम वो नहीं करेंगे। तो क्या बोला है, देखो, इट इज द लेटेस्ट टाइम द एक्टिविटी कैन बिगिन एंड स्टिल अलाउ द प्रोजेक्ट टू बी कंप्लीटेड ऑन टाइम। मतलब नेक्स्ट ट्यूसडे तक तुम्हारा असाइनमेंट सबमिट हो जाएगा, ठीक है। कोई कोई बच्चा क्या है कि आज से स्टार्ट करेगा, कोई कोई बच्चा है कि संडे को स्टार्ट करेगा, मतलब संडे को सारा रात खटेगा, करेगा करेगा, लेकिन मंडे को वो सबमिट करेगा। तो उसका लेट स्टार्ट टाइम क्या है, संडे है, और अर्ली स्टार्ट टाइम क्या है, 0 है, मतलब आज के दिन में। ओके, सो दूसरा क्या है, अर्ली फिनिश टाइम, मतलब जल्द से जल्द तुम अपना असाइनमेंट कब फिनिश करोगे, दैट इज द अर्लीस्ट फिनिश टाइम। क्लियर? दूसरा क्या है, लेट फिनिश टाइम, मतलब लेट से लेट कब तक तुम अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर सकते हो। बोलो तो ये टाइम भी, ये भी तुमको पता होना चाहिए, ये भी पता होना चाहिए। ये दोनों तो डिपेंड करता है स्टूडेंट के ऊपर, कौन लेट से स्टार्ट करेगा, कौन जल्दी खत्म करेगा, ठीक है। उसका मैन पावर के ऊपर, उसका एनर्जी के ऊपर डिपेंड करता है कि कैसा वो, उसका फोकस कंसंट्रेशन उसके ऊपर, ठीक है। बट दिस एंड दिस इज फिक्स्ड। अर्ली मतलब है आज मिला, आज से स्टार्ट करोगे। अब लेट फिनिश टाइम और लेट कंप्लीशन टाइम का मतलब है कि लेट से लेट कब कंप्लीट करोगे, सो दैट कि तुम नेक्स्ट मंडे तक, नेक्स्ट ट्यूसडे तक अपना प्रोजेक्ट सबमिट करोगे। तो ये कौन सा होगा, बोलो तो कौन सा दिन होगा, लेट से लेट कब फिनिश। सपोज 7 डेज है तुमको दिया है, अर्ली स्टार्ट टाइम है 0th डे, ठीक है। तो लेट से लेट कब फिनिश कर सकते हो, जिससे कि तुम अपना असाइनमेंट टाइम में सबमिट करो। तो 7 डे में ही। यस, 7th डे में ही होगा, राइट, वेरी गुड। जल्दी से जल्दी आज स्टार्ट करोगे, और लेट से लेट कब करोगे, 7th डे में करोगे। उससे ज्यादा करोगे तो तुम्हारा मतलब वो हो जाएगा, एक्सेप्ट ही नहीं होगा असाइनमेंट, ठीक है। तो यही बोला जाएगा, इट इज द लेटेस्ट टाइम द एक्टिविटी कैन एंड एंड स्टिल अलाउ द प्रोजेक्ट टू बी कंप्लीटेड ऑन टाइम। ओके, ये क्लियर है। तो अभी हमको जो काम करेंगे, इट इज योर अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम एंड अनदर इज योर लेटेस्ट फिनिश टाइम और कंप्लीशन टाइम, एक ही है। ओके, सो ये दोनों को लेकर हमको अभी फिलहाल काम करना है। ये दोनों तो जस्ट फॉर एक्सप्लेनेशन बोल दिया है। ओके, सो इसको हम ES बोलेंगे, इसको हम LF बोलेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में। ओके, सॉरी नेक्स्ट स्लाइड्स में। Now comes the earliest start time. See, it is defined as the earliest possible time at which an activity can start. Okay. अब ये जब कैलकुलेट करते हैं, व्हेन वी कैलकुलेट दिस अर्लीस्ट, बोलेगा तुमको फर्स्ट कैलकुलेट करना पड़ता है। क्रिटिकल पार्ट डायरेक्टली यू कैन नॉट कर सकते हो, डायरेक्टली भी कर सकते हो, दैट इज द शॉर्टेस्ट, ठीक है। डायरेक्टली कैसे करते हो, लेट अस सी। ओके, डायरेक्टली के कैसे करोगे, अगर तुमको MCQ में बोला गएगा, सपोज आई हैव गिवन यू दिस वन, ठीक है, तुमको ये प्रोजेक्ट नेटवर्क डायग्राम प्रोवाइड कर दिया, ये रेड रेड भी हटा दो, ठीक है। हमको नहीं पता कि कौन सा क्रिटिकल पाथ है, वी डोंट नो। नाउ दे विल आस्क यू, टेल मी विच इज द क्रिटिकल पाथ। तो क्रिटिकल पाथ का और एक डेफिनेशन क्या है, इट इज द लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन पाथ। मतलब जिस पाथ से तुम स्टार्ट से जाकर फिनिश तक जाओगे, तो इट विल टेक द लॉन्गेस्ट टाइम ड्यूरेशन। ओके, हाउ टू कैलकुलेट दैट लॉन्गेस्ट, हाउ टू कैलकुलेट दैट ड्यूरेशन। तो फर्स्ट आइडेंटिफाई करो कि कितना सारा पाथ है, ठीक है। चलो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट से। ओके, देखो ये एक पाथ हुआ ना, येलो कलर का हम जो बोले थे, ठीक है। नाउ टेल मी व्हाट इज द लेंथ ऑफ ड्यूरेशन ऑफ दिस पाथ। हम बोले थे पाथ कंसिस्ट ऑफ एक्टिविटीज, ठीक है। पाथ का ड्यूरेशन का मतलब है वहां पे जितना भी एक्टिविटीज है उनका ड्यूरेशन को ऐड कर दो। 22। सिंपल, वेरी गुड। कैसे आया, देखो ए एक्टिविटी कंप्लीट करने के लिए कितना दिन लग रहा है, 2 दिन, ठीक है। अब जब ए खत्म होगा तभी तो ई स्टार्ट होगा, तो ई स्टार्ट हो रहा है कितना दिन से,
थर्ड डे से, और कितना दिन चलेगा, 7 दिन चलेगा। ठीक है, तो करो ये टोटल ड्यूरेशन कितना ले रहा है, ये 2 दिन ले रहा है, ये 7 दिन ले रहा है, तो दोनों मिलकर कितना दिन, 9 दिन। ठीक है, अब थर्ड वाला मिलकर कितना ले रहा है, 9 दिन प्लस 5 कितना है, 14। ठीक है, अब 14 डे से तुम्हारा ये स्टार्ट हो रहा है, आफ्टर 14th डे से ये स्टार्ट हो रहा है एन एक्टिविटी। ठीक है, तो और वो कितना ले रहा है, 8 दिन ले रहा है। सो 14 से लेकर 8 दिन ऐड कर दो, कितना होगा, 22। क्लियर? यस मैम। तो 22 डेज ले रहा है। ठीक है, चलो अब ये वाला एक्टिविटी देखते हैं। यू हैव टू आइडेंटिफाई ऑल द एक्टिविटीज। ओके, तो सपोज ये एक्टिविटी, अब इसमें कितना टाइम लगेगा बोलो, 18। 4 कुछ नहीं, ऐड कर दो, ड्यूरेशन को ऐड कर दो, 4 जो जो एक्टिविटी है सबका ड्यूरेशन ऐड कर दो, 4 2 6 6 12 18 डेज। वेरी गुड। अभी और भी एक्टिविटीज है, अभी हम फिलहाल ये रेड वाला पकड़ते हैं। ठीक है, तो रेड पकड़ के बोलो कितना आ रहा है, 28। 28, राइट। वेरी गुड। तो 5 + 5 10, 10 + 6 16, 16 + 4 20, 20 + 8 28। सो from these 3 activity कौन सा longest duration sorry from this path 3 paths which is the longest path, red color, right? so क्योंकि उसका 28 days लग रहा है, इसका 22 days लग रहा है, इसका 18 days लग रहा है, so this is the longest। ठीक है, so we can assume or we can say among these 3 active path this red color path is the critical path। ओके, तो इसको तुम लोग ऐसा भी लिख सकते हो, 1 क्रिटिकल पाथ कौन सा है, 1 to 2, 2 to 4, ठीक है, 4 to 6, 6 to 8, 8 to 9। सो दिस इज योर लॉन्गेस्ट और वी कैन से दिस इज योर क्रिटिकल पाथ। बहुत सारा ऑप्शन मिलेगा, बोलेगा कि कौन सा क्रिटिकल पाथ है, चूज करो। ओके, सो दिस इज द शॉर्टेस्ट मेथड, इजीएस्ट मेथड। ठीक है, तुम्हारा एमसीक्यूज में आ सकता है ये वाला, बट लेकिन स्टिल तुमको कभी कभी क्या होता है, तो अभी तो ये सब कुछ एमसीक्यू में हो रहा है, लेकिन जब न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए बोलता है तो दे विल आस्क यू सेवरल क्वेश्चंस, अदर क्वेश्चंस भी पूछेगा। ठीक है, बोलेगा कि अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम निकालो सबका, लेटेस्ट कंप्लीशन टाइम निकालो सबका, तब जाके तुम कौन सा क्रिटिकल पाथ है वो निकालो बोलेगा। ठीक है, सो इन दैट केस सो फर्स्ट तब हम लोग ये पढ़ने में आएगा, ये क्या बोलते हैं, अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम, लेटेस्ट कंप्लीशन टाइम, तब आएगा। ओके, नाउ सी अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम का मतलब क्या है। से फॉर एग्जांपल दिस इज योर आई इवेंट, दिस इज जे इवेंट। अब बोलो कौन सा नंबर, अगर यहाँ पे नंबर डालेंगे तो कौन सा नंबर ज्यादा होना चाहिए, जे और आई? विच इवेंट नंबर शुड बी ग्रेटर, जे और आई? जे। J as per Fulkerson's rule, right? So J should be greater। तो अभी एग्जांपल के लिए हम ये I to J ऐसा कर रहे हैं। ओके, और इसका बोल रहे थे कि इसका दिस इज सपोज हम बोलते हैं ये ही तुम्हारा स्टार्टिंग इवेंट है। ठीक है, फॉर दिस पर्टिकुलर डायग्राम यही स्टार्टिंग इवेंट है, मतलब तुमको आज हम असाइनमेंट दिए हैं। ठीक है, तो मतलब अब ये जो एक्टिविटी ये है दिस इज योर असाइनमेंट, तुम असाइनमेंट करोगे तो कितना दिन लगेगा, इतना दिन लगेगा। ठीक है, 7 दिन का असाइनमेंट है, लेकिन तुम इतना दिन नहीं ले सकते हो, राइट? डेट में भी 7 का 7 दिन हो सकता है, 7 से कम भी हो सकता है, राइट? लेकिन ज़्यादा नहीं होगा, 7 दिन के विद इन 7 डेज के अंदर में होना चाहिए। ठीक है, सपोज ये वाला है कि DIJ इज द ड्यूरेशन ऑफ द एक्टिविटी। ठीक है, तो बोलो तुमको प्रोजेक्ट मिला है, अभी मिला है, आज के दिन में मिला है, तो इसका अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम क्या होगा, ये वाले एक्टिविटी का अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम 0। यस। ओके, तो दिस विल बी योर 0। ठीक है, अभी हम यहाँ पे दिए नहीं है, नेक्स्ट जब एग्जाम्पल पढ़ेंगे तब देखना, दिस विल बी कंसिडर्ड एज 0। मतलब जो प्रोजेक्ट का जो एकदम स्टार्टिंग वाला इवेंट होगा उसका ES शुड बी 0। ओके, मतलब ES1 शुड बी 0। ठीक है, जब हम लोग सॉल्व करेंगे योर ES1 शुड बी 0, कंसिडर शुड बी 0। ओके, ठीक है, अब देखो तुम 0 से स्टार्ट किए हो। ठीक है, ये वाला मेरा असाइनमेंट है, तुम मेरा असाइनमेंट कर रहे हो, कितना दिन लगा रहे हो, इतना दिन लगा रहे हो। ठीक है, सपोज ये लगा रहे हो, हमने बोला 2 दिन लगाया असाइनमेंट। ठीक है, अब बट साइमल्टेनियसली और भी फैकल्टी लोगों ने तुमको असाइनमेंट दिया है। ठीक है, पहले हमने दिया था तो तुमने हमारा वाला स्टार्ट जल्दी किया। ठीक है,
और कितना दिन लगा के किया, 2 दिन लगा के किया। अब देखना कि वहाँ पे दूसरा मैडम, दूसरा सर ने भी तुमको कुछ असाइनमेंट दिया है, अब तुम वो वाला भी असाइनमेंट जल्दी से जल्दी स्टार्ट करोगे। मतलब ये वाला खत्म हुआ असाइनमेंट, यहाँ पे जाके खत्म हो रहा है, अब यहाँ से तुम्हारा दूसरा असाइनमेंट स्टार्ट होगा। ठीक है, तो ये वाला असाइनमेंट कब स्टार्ट करोगे बोलो? तुमने आज दिया असाइनमेंट, आज से स्टार्ट किया, 0 डे से स्टार्ट किया, 2 दिन लगा दिया कंप्लीट करने में। ठीक है, अब दूसरा असाइनमेंट तुम जल्द से जल्द कब स्टार्ट करोगे? 2 दिन बाद। हाँ, 2 दिन बाद ही, तुरंत ही स्टार्ट कर दोगे ना, 2 दिन बाद ही, राइट। तो ये 2 दिन कहाँ से आ रहा है? सो योर ESJ विल भी क्या होगा, ये वाले एक्टिविटी का अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम क्या है? ये जे इवेंट है तो ESJ होगा। ठीक है, सो ESJ 2 दिन आ रहा है तुम्हारा, ये 2 दिन कैसे आ रहा है, अब बोलो कैसे तुमने हिसाब किया 2 दिन? ESJ का वैल्यू 2 आएगा, ये कैसे हिसाब किया? दिया हुआ तो कहाँ दिया है? दीजिए। दिस इज नॉट द अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम, ये तो ड्यूरेशन है। देखो इसको हम लिख सकते हैं ES, इसके बगल वाला जो भी होगा इवेंट उसका ES, सपोज इसके बगल वाला कौन सा है, आई तो है ना पीछे वाला, ESI प्लस DIJ हम लिख सकते हैं। कैन वी राइट इट? अब देखो ये ESI Yes, कितना है, 0 है तुम्हारा, ये DIJ क्या है, 2 है, तभी तो 2 वैल्यू तुमने कैलकुलेट किया, राइट? ऐसे नहीं आ रहा है, क्लियर? आज के दिन में मिला तुमको, 2 दिन लगा। ठीक है, तो 0 + 2, 2 डेज में अब दूसरा वाला स्टार्ट कर सकोगे। क्लियर? Yes, ma'am. ठीक है, और एक एग्जांपल देते हैं, चलो तो फिर और समझ में आएगा। सो ESJ इज, सो दिस इज द मेन फंडा, ये फॉर्मूला। ठीक है, जो सामने वाला जो भी एरो हेड में जो इवेंट रहेगा उसका ES विल भी क्या होगा, एरो का टेल में जो इवेंट है दैट प्लस DIJ, ये एक्टिविटी का DIJ। क्लियर? और ड्यूरेशन, एक्टिविटी का ड्यूरेशन। ओके, अब देखो यहाँ पे एक मैक्स बोल के आया है, वही फॉर्मूला, लेकिन वी हैव टू टेक द मैक्सिमम वैल्यू, तो वो कब आएगा, लेट अस सी, हम देखेंगे कब आएगा। एंड अगेन सी, ये वाला कैसे कर रहे हैं हम, कैलकुलेट फॉरवर्ड मोशन में जा रहे हैं, राइट? सबको फॉरवर्ड मोशन में कर रहे हैं, तो ये वाला बोलते हैं हम लोग फॉरवर्ड मेथड। जब अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम करोगे तो उसको फॉरवर्ड मेथड भी बोलते हैं। ओके, क्योंकि हम सामने वाला कैलकुलेट कर रहे हैं पीछे को देख देख के, सो फॉरवर्ड मेथड, फॉरवर्ड में जा रहे हैं हम लोग। ओके, तो देखो ये वाला एग्जांपल जो बोले थे हम, अब ये हो गया तुम्हारा, मेरा वाला असाइनमेंट तुमने ये वाला दिन में स्टार्ट किया है। ठीक है, सपोज इज द स्टार्टिंग ऑफ द प्रोजेक्ट, तो यहाँ पे ये हमने बोला था जो भी स्टार्टिंग इवेंट होता है उसका 0 पकड़ना है हमको। ठीक है, तो ये वाला इवेंट का ES कितना होगा, सॉरी ये जो एक्टिविटी होगा, ये एक्टिविटी जल्द से जल्द कितना दिन में स्टार्ट करोगे, तो उसका ES कौन सा होगा, कितना होगा ये वाला एक्टिविटी का। ये मेरा असाइनमेंट है, तुमने 2 दिन लगा कर किया है। ठीक है, अब दूसरा असाइनमेंट जल्द से जल्द कब स्टार्ट करोगे, तो उसका 2 ES दिन में। 2 दिन। ठीक है, देखो ES1 + D12 विच इज 2 डेज। ठीक है, अब ये जो सपोज ये तुम्हारा BCD सर का असाइनमेंट है, ठीक है, तो वो वाला क्या वाला फाउंडेशन है, बहुत बड़ा वाला असाइनमेंट, तो 5 दिन लग रहा है। ठीक है, अब तुम 5 दिन में वो कंप्लीट करोगे, लेकिन स्टार्ट कर रहे हो दूसरा दिन में। ठीक है, अब इसके बाद वाला जो असाइनमेंट होगा, जो भी असाइनमेंट होगा, वो जल्द से जल्द कब स्टार्ट करोगे? 5 दिन। 7 5 दिन, दिन। 7 7 डे। यस, 5 दिन कैसे होगा, जो जिसने 5 दिन बोला वो कैसे होगा? ये तो कंप्लीट देखो, आज का मंडे के दिन में ट्यूसडे यहाँ पे स्टार्ट किया। ठीक है, ट्यूसडे वेडनेसडे तुमने ये खत्म कर दिया, अब यहाँ से तुमने थर्सडे से स्टार्ट किया ये वाला। ठीक है, थर्सडे से लेकर 5 दिन एक्स्ट्रा ऐड करते जाओ, तो आफ्टर थर्सडे के 5 दिन के बाद ही तो ये वाला स्टार्ट करोगे ना, तो वो मंडे ट्यूसडे से कितना दिन के बाद वो वाला दिन आ रहा है, दैट इज 7। ओके, मतलब कुछ नहीं है, इसके बगल वाला ES देखो 2 है, उसके साथ ड्यूरेशन ऐड कर दो। ठीक है, क्लियर, फंडा क्लियर, ये फार्मूला क्लियर? Yes, ma'am. ओके, अब देखो ये हम क्या कर रहे हैं, ये फॉरवर्ड मोशन में जा रहे हैं ना, इसीलिए इसको हम बोलते हैं फॉरवर्ड मेथड। ओके,
जब लेटेस्ट कंप्लीशन करते हैं वो बैक से होकर आते हैं हम लोग, ओके, बैक से होकर आते हैं। अब देखो यहाँ पे कितना दिया है, वी हैव टू फाइंड दी मैक्सिमम। यहाँ पे सिंगल सिंगल एरो है, ओके, यहाँ पे सिंगल सिंगल एरो हो, तो यहाँ पे ये मैक्सिमम का कोई जरूरी नहीं है, जो कैलकुलेट होगा सिंगल सिंगल ही होगा। लेकिन मैक्सिमम कब आता है, तभी आता है जब यहाँ पे ये वाले इवेंट या कोई भी इवेंट में मल्टीपल एरो आके मर्ज होता है, जैसे ऐसे, ठीक है। सो ये वाले केस में अगर इसमें तुम निकालोगे ई एस, ठीक है, तब हमको दो वैल्यू आएगा। समझ में आ रहा है? देखो यहाँ से भी एक ई एस आ रहा है, यहाँ से भी ई एस आ रहा है, तो क्या और एक्टिविटी आ रहा है, यहाँ से भी एक्टिविटी आ रहा है, तो इसका दो वैल्यू आएगा। तो जो दो होता है उसमें से हमको मैक्सिमम कंसिडर करना है, दैट इज योर, इसीलिए वो मैक्सिमम फॉर्मूला में दिया गया है, ठीक है। अब लेट अस सी कि आज के दिन में तुमको दोनों ही असाइनमेंट मिला है, ठीक है, आज के दिन में तुमको दोनों ही असाइनमेंट तुमको मिला है, ठीक है। सपोज ये वाला तुमको दिया गया है, ठीक है, ये वाला तुमको दिया गया है, या ये वाला भी तुमको दिया रहेगा, मतलब इसका ईएस कब होगा ये भी तुमको दिया गया है, या हम लोग जो इसके पीछे वाला और भी एक्टिविटीज है तो करते करते कैलकुलेट करते करते ये थर्ड नंबर इवेंट में आ रहे हैं, ठीक है। तो देखो इसका ईएस सपोज 5 है, इसका ईएस सपोज 6 है, मतलब कि ये जो एक्टिविटी है, ये जो मेरा असाइनमेंट है, तुम आफ्टर 5 डेज जो भी आया था वहां से बाकी असाइनमेंट कंप्लीट करके आफ्टर 5 डेज जल्द से जल्द तुम मेरा असाइनमेंट स्टार्ट करोगे, ठीक है। और दूसरा क्या है, दूसरा और भी दूसरे जगह से भी बहुत सारा दूसरा काम आ रहा है, तो उसके लिए ये वाला एक्टिविटी तुम जल्द से जल्द 6 डेज में जाके स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। तो दिस इज एन एग्जाम्पल। तो इन दिस केस तब ई एस जे कितना होगा, बोलो, ये ई एस 5 कितना होगा, जब हम ये वाला एक्टिविटी कंसिडर करेंगे तब ई एस 5 कितना होना 5 चाहिए, 10 5 ম্যাক্সিমাম আবার হবে 10 তো। 5 सिर्फ मैक्सिमम पड़े, আমি বলছি फर्स्ट सी दिस एक्टिविटी ओनली, इसको अभी नेग्लेक्ट करो, ठीक है, ये वाला एक्टिविटी देखो, ठीक है। अब बोलो ওটা 10 হয়ে যাবে, ওটা 9 হয়ে यस যাবে নিচে। यस वेरी गुड, ठीक है। तो ये वाला हो जाएगा 5 + 5 10, ठीक है, ई एस का वैल्यू 2 आएगा, और ये होगा 6 + 3 9। तो इसमें से जो मैक्सिमम है वही हमको चाहिए। क्यों क्यों मैक्सिमम है, देखो ये वाला तुम मेरा असाइनमेंट कर रहे हो, अब ये वाला भी तुम बीसीडी सर का असाइनमेंट कर रहे हो, ठीक है। अब दिया गया है तुमको वहाँ पे दूसरा एसके सर का असाइनमेंट, ठीक है। तो एसके सर का असाइनमेंट तुम तभी कंप्लीट स्टार्ट कर पाओगे एज पर दिस नेटवर्क एग्जाम्पल, तभी स्टार्ट कर पाओगे जब दोनों असाइनमेंट खत्म होगा, ठीक है। दोनों असाइनमेंट जब तुम खत्म कर पाओगे देन ओनली यू विल स्टार्ट एसके सर्स असाइनमेंट, राइट। अब देखो 10 इसका लग रहा है कितना, 10 दिन में जाके खत्म हो रहा है, ये वाला 9 दिन में जाके खत्म हो रहा है। तुम क्या 9 दिन में ये वाला असाइनमेंट स्टार्ट करोगे, नहीं, क्योंकि मेरा तो ये इनकम्प्लीट होगा, तब मुझे तो और एक दिन लगेगा ये वाला असाइनमेंट करने के लिए, ठीक है। वेरएज ये वाला कंप्लीट हो गया है 9 दिन, चल ठीक है, उस हिसाब से ये तुम स्टार्ट कर सकते थे अगर सिर्फ ये अकेला होता, लेकिन यहाँ पे तुमको ये भी कंप्लीट करना है, ये असाइनमेंट भी कंप्लीट करना है, उसके लिए और 10 दिन लगेगा, मतलब और एक दिन एक्स्ट्रा लगेगा, ठीक है। तो दिस एक्टिविटी विल बी स्टार्टेड ओनली अनटिल एंड अनलेस ये दोनों कंप्लीट नहीं होगा, वी विल नॉट स्टार्ट दिस एक्टिविटी, ठीक है। अब ये दोनों ही एक्टिविटी कब जाके खत्म हो रहा है, 10th डे में ही खत्म हो जाएगा, ठीक है। मतलब 9 दिन में तो खत्म हो रहा है, नहीं एक दिन एक्स्ट्रा लग रहा है इसके लिए, तो इसीलिए 10 दिन में हम बोल सकते हैं ये भी खत्म, ये भी खत्म, राइट। सो वी कैन इजीली स्टार्ट दिस असाइनमेंट आफ्टर 10 डेज, इसीलिए हम लोगों ने मैक्सिमम पकड़ा है। क्लियर क्लियर Yes, ma'am. okay, very good. So in this way you have to calculate the ES values, okay। तो ऐसे देखो ES ये वाला जो होगा ES 3 + 5 D 3 5, ठीक है, मतलब 5 है, 5 + 5 यह ES, यहाँ से जब आओगे तो ES 4 + D 4 5 which is 6 + 4 6 + 3 which is 9। तो आउट ऑफ दिस टू we have to take the maximum, so after 10 days यहाँ से जो भी एक्टिविटी स्टार्ट होगा it will start as early as possible, okay। now let us see what is latest finish time, मतलब है कि तुमको
7 दिन का पीरियड दिया है तो लेट से लेट कब खत्म करोगे प्रोजेक्ट, ठीक है। दैट इज द मतलब जितना दिन दिया है उतना दिन में हमको कंप्लीट करना है ना, तो लेट से लेट हम उतने दिन में कंप्लीट करेंगे। सो अब इसमें लेकिन मिनिमम आ जा रहा है, ओके। इसका अब उल्टा हो जाएगा। इसमें कौन सा वैल्यू हमको पता रहेगा, सपोज ये पूरा प्रोजेक्ट का दिस इज द फिनिशिंग नोड, ठीक है, जो हम बोले थे कि तुमको आफ्टर 7 डेज ये कंप्लीट करना ही है, ठीक है। तो दैट इज दैट इवेंट, ओके। असाइनमेंट सबमिशन डे ये वाला है। तो यहाँ पे जो भी एल एफ होगा सपोज दैट इज एल एफ जे, ठीक है। ये है तुम्हारा डी आई जे, ठीक है। तो तुम्हारा एल एफ आई विल भी क्या हो जाएगा, सिंपली माइनस कर देना है, ठीक है। मतलब कि लेट से लेट कब फिनिश होगा, इसके पीछे वाला एक्टिविटी कब फिनिश हुआ था, ओके। लेट से लेट कब फिनिश हुआ था, जिससे कि तुम्हारा ये लेट से लेट स्टार्ट होके लेट से लेट फिनिश हुआ है ये वाला एक्टिविटी, ठीक है। तो इसका क्या करेंगे, सिंपली पिछले वाले में हम एडिशन करते जा रहे थे, इसमें हम माइनस करते जाएंगे। तो माइनस क्या है, एल एफ जे विल बी गिवन, पिछले वाले में आई का वैल्यू दिया था, अभी जे का वैल्यू हमको पता रहेगा, तो जे के साथ एल एफ जे के साथ माइनस डी आई जे करोगे तो एल एफ आई आ जाएगा। अगर यहाँ पे और एक एक्टिविटी है तो क्या हो जाएगा तुम्हारा, यहाँ पे जो भी आया है सपोज एक्स है तो क्या हो जाएगा, एल एफ एक्स विल बी एल एफ आई माइनस डी एक्स आई, ओके। अगर ड्यूरेशन यहाँ पे डी एक्स आई है तो मतलब एक्स टू आई, अब माइनस करते करते जाना है। अगेंस्ट ये यहाँ पे क्या हो रहा है, उल्टा पीछे की तरफ जा रहे हैं हम, ठीक है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड बैकवर्ड मेथड, ठीक है। तो सिंपल यही है, पीछे अर्लियर स्टार्ट टाइम का वही फंडा था, ऐड करना है, यहाँ पे माइनस करना है ड्यूरेशन को। वहाँ पे ड्यूरेशन को ऐड करते करते जा रहे थे सामने की तरफ, फॉरवर्ड है, अब ये पीछे की तरफ हम डी आई जे को माइनस करते करते जाएंगे, ठीक है। तो बैकवर्ड है, वहाँ पे मैक्सिमम लेना था, यहाँ पे मिनिमम लेना है, ओके। क्योंकि देखो लेट को हम और ज़्यादा नहीं कर सकते, लेट में हमको क्या करना है, हमको मिनिमम ही रखना है, जिससे तुम्हारा प्रोजेक्ट कंप्लीशन विल बी मतलब विद इन दैट पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। लेट टाइम को हमको बढ़ा नहीं देना है। तुम्हारा सपोज 7 दिन का प्रोजेक्ट है तो तुम 8 दिन में जाके कंप्लीट करोगे, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तुमको 7 दिन या 7 से कम दिन में करना है, तो वी हैव टू टेक द मिनिमम, ठीक है। तो अब ये वाले केस का सपोज ई एस यहाँ का दिया गया है, ठीक है। सपोज दिस इज द लास्ट इवेंट, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे जाके तुम्हारा सब कुछ खत्म हो गया, असाइनमेंट खत्म हो गया, अब क्या आ रहा है तुम्हारा इंटरनल मतलब दूसरा प्रोजेक्ट, तुम्हारे लिए दूसरा प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहा है। तो हम यहाँ पे बोलेंगे बड़ा वाला एरो से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या स्टार्ट होगा, दूसरा प्रोजेक्ट मतलब दूसरा प्रोजेक्ट नेटवर्क। अब यहाँ से फिर से 1, ठीक है, फिर 2 3 करके एरो ये सब नेटवर्क डायग्राम होगा, ठीक है। तो इसका कैलकुलेट करते करते हमने देखा कि ES3 आ रहा है 7, ठीक है। सो कैन वी से कि ये होल प्रोजेक्ट ड्यूरेशन का कितना दिन है, 7 डेज है। हम बता सकते कि नहीं सकते, बोलो। यस मतलब मैम। कि दूसरा प्रोजेक्ट 7 दिन के बाद स्टार्ट होगा, मतलब क्या है, मतलब ये वाला पूरा प्रोजेक्ट 7 दिन में कंप्लीट हुआ, हम बोल सकते हैं ना, ये कंप्लीट 7 दिन में हुआ बोल के तो ये वाला प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहा है, दूसरा प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहा है। प्लीज रिमेंबर ये एक अलग प्रोजेक्ट है, यहाँ से अब अलग प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा, ठीक है। यहाँ से तुम्हारा प्रोजेक्ट खत्म, एक प्रोजेक्ट खत्म, यहाँ से अब अलग प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा। अब देखो इसका यहाँ पे जाके हम बोल रहे थे कि इसका ES3 है कितना, मतलब 7 आ रहा है, मतलब कि यहाँ से अब दूसरा कुछ भी निकलेगा, एरो निकलेगा, वो जल्द से जल्द 7 दिन के बाद ही निकल सकता है, मतलब जल्द से जल्द 7 दिन के बाद ही हम दूसरा प्रोजेक्ट कर सकते हैं, राइट। सो कैन वी से कि 7 दिन में ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होना चाहिए, ये पूरा प्रोजेक्ट, यस मैम। राइट। सो ES3 का लास्ट में जो भी इवेंट होता है उस इवेंट का ES जो भी वैल्यू रहता है दैट इज योर प्रोजेक्ट ड्यूरेशन। ये भी MCQs में आता है, प्लीज नोट इट डाउन, ओके। मतलब कि लास्ट वाला एरो हेड में अगर हम बोलेंगे पूरा प्रोजेक्ट का, ये देखो ये जो है
इसका हम कैलकुलेट करते जा रहे हैं, ई एस कैलकुलेट करते जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे एक वैल्यू आ रहा है, ठीक है, ई एस का एक वैल्यू आ रहा है। सो ई एस का जो भी वैल्यू आएगा उसका मतलब क्या है, ई एस का मतलब क्या है कि इस यहाँ से अब जो भी एक्टिविटी स्टार्ट होगा वो जल्द से जल्द कब स्टार्ट होगा, राइट। अब यहाँ पे तो हम बोलते हैं ना, यहाँ से तो प्रोजेक्ट खत्म हो गया, ये प्रोजेक्ट खत्म हो गया, अब यहाँ से शायद दूसरा प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा वैसे ही, ठीक है। तो जल्द से जल्द कब ये वाला प्रोजेक्ट, ये फर्स्ट प्रोजेक्ट है, ये सेकेंड प्रोजेक्ट है, स्टार्ट होगा, ठीक है। तो कब स्टार्ट होगा, जब ये खत्म होगा ये वाला प्रोजेक्ट। तो ये वाला प्रोजेक्ट कब खत्म हो रहा है, तो यहाँ पे जो भी ई एस वैल्यू है दैट इज द प्रोजेक्ट ड्यूरेशन ऑफ द फर्स्ट प्रोजेक्ट, PD1 फर्स्ट प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन। क्लियर? Yes, ma'am. ओके। तो अगर ये प्रोजेक्ट ड्यूरेशन है, सपोज हमने ये असाइनमेंट दिया है तुमको, ठीक है, मतलब ये 7 दिन का असाइनमेंट है, ठीक है, मतलब प्रोजेक्ट ड्यूरेशन है तुम्हारा 7 डेज का, ठीक है। तो लेट से लेट ये प्रोजेक्ट कब खत्म हो सकता है, कब होना चाहिए, लेट से लेट। हम बोले थे 7 दिन का असाइनमेंट दिया है, तो लेट से लेट तुम कब जमा दोगे, 7 days. 7 डेज में। तो इस वाले इवेंट का LF क्या होना चाहिए बोलो, अगर ये ES 7 था तो प्रोजेक्ट ड्यूरेशन भी 7 ही है, तो LF भी क्या होगा लास्ट वाला इवेंट का, लास्ट वाले इवेंट का ES से 7 मतलब है कि ये पूरा असाइनमेंट तुमको 7 डेज में ही कंप्लीट करना है, ठीक है। मतलब प्रोजेक्ट ड्यूरेशन, उसका असाइनमेंट को तुम प्रोजेक्ट हिसाब में पकड़ो, सो प्रोजेक्ट ड्यूरेशन है 7 डेज का ही, ठीक है। तो लेट से लेट तुम कब फिनिश कर सकते हो अपना पूरा लास्ट वाला इवेंट, 7 में ही कंप्लीट कर सकते हो, राइट। क्लियर है? तो लास्ट वाले इवेंट का LF इज नथिंग बट द लास्ट वाले इवेंट का ES। क्लियर? कर सकते कि नहीं कर सकते, लिख सकते कि नहीं लिख सकते। देखो यहाँ से दो तुम लोग का MCQ हो जा रहा है, क्या कि बोलेगा कि व्हाट इज द प्रोजेक्ट ड्यूरेशन, अगर पूछेगा तो लास्ट वाला कैलकुलेट करते जाओ, लास्ट वाले इवेंट का ES निकालो, दैट इज ए प्रोजेक्ट ड्यूरेशन, ठीक है। अगर पूछेगा कि लास्ट वाले इवेंट का लेटेस्ट फिनिश टाइम कितना होना चाहिए, लास्ट वाले इवेंट के ऊपर लेटेस्ट फिनिश टाइम कितना लिखना चाहिए, तो लास्ट वाले इवेंट का जो ES या प्रोजेक्ट ड्यूरेशन जो भी है दैट इटसेल्फ इज योर LF। ओके, क्लियर है? तो क्लियर আছে कि नहीं गो, কোথায় গেলাম? तो देखो सपोज यहाँ पे हमने ES3 कितना ले रहा है, ये कैलकुलेट करके हमने निकाला ES3 is 7, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं ना LF3 इज नथिंग बट ES3, तो LF3 इज ऑल्सो 7। क्लियर? Yes, ma'am. लास्ट जैसे फर्स्ट का हमको ES पता रहेगा, सिमिलरली लास्ट का LF हमको पता रहेगा, ठीक है। फर्स्ट का ES होना चाहिए 0 और लास्ट का LF होना चाहिए, जो लास्ट का ES है वही हम लास्ट का LF भी रख देंगे। ओके, अब बैक कैलकुलेशन करके हमको बोलो LF2 कितना आएगा, 2। LF2 2 कैसे आ रहा है, LF2 आ रहा है LF3 माइनस ड्यूरेशन, ठीक है। तो 7 माइनस 5 2। ओके, अब ये वाला कितना होगा LF3, LF1 0. 0, मतलब क्या है, इसका जो भी LF होगा सामने वाला उसका माइनस ड्यूरेशन। ओके, सो 2 माइनस 2 0। क्लियर? क्लियर? तो ऐसे Yes, sir. LF कैलकुलेट कर सकते हो। ओके, अब ये मिनिमम क्यों बोल रहे हैं, तो देखो हम बैकवर्ड में जा रहे थे, ES में क्या कर रहे थे, सामने की तरफ जा रहे थे तो फॉरवर्ड मेथड, अब इसमें बैकवर्ड में जा रहे हैं तो बैकवर्ड मेथड। ओके, अब देखो ऐसा अगर केस हुआ तो हम लोग को बैक जाना है, ठीक है। तो बैक में ये वाला जो है इसका जब LF निकालेंगे, इसमें से देखो यहाँ से भी एक LF आएगा, यहाँ से भी एक LF का वैल्यू आएगा, तो उसमें से जो भी मिनिमम होगा वो हमको पकड़ना है, ठीक है। क्लियर? तो Yes, सपोज ma'am. इसका LF 12 है, इसका LF 10 है, बोलो इसका LF कितना होगा, First हम- one 5. देखो यहाँ से जब आ रहे हैं व्हेन LF जब निकालोगे तो ये देखना कितना टेल हेड अटैच है, ठीक है, वो वाले इवेंट के साथ,
ठीक है। अगर ES निकालोगे तो देखना चाहिए था कि कितना एरो हेड अटैच है वो वाली इवेंट के साथ। ठीक है, ये देखना है। जैसे देखो कहाँ गया, यहाँ पे देखो, जब ES निकाले तो देखना कितना सारा एरो हेड अटैच था। 2 तो था तो दोनों में से मैक्सिमम, अगर 3 तो है तो 3 तो में से मैक्सिमम। ठीक है, ES के लिए। अब LF के लिए क्या करना है, LF के लिए भी देखना है कि कितना सारा टेल हेड अटैच है। यहाँ पे 2 तो है तो 2 तो में से मिनिमम, तो हम बोले थे ये 10 है, तो यहाँ से क्या होगा बोलो, इस वाले से अगर हम जाएंगे, इस वाले से अगर हम जाएंगे, सॉरी 5, इस वाले से अगर जाएंगे तो क्या होगा, 10 माइनस 5 5, राइट। तो 10 माइनस 5 5, और इस वाले से जब जाएंगे तो कितना आएगा, इस वाले से अगर जाएंगे तो कितना आएगा 9, 9। 12 माइनस 3 9, सिंपल। अब इसमें से क्या लेना है, 5, मिनिमम। ठीक है, तो देखो मिनिमम नहीं है यहाँ पे, so 5, clear। so like this way we can calculate, and again it is in backward motion, तो इसको backward method बोलते हैं। clear, यहाँ तक आज करते हैं। yes ma'am, okay, यहाँ तक ही आज करते हैं। we will start this lab in the next lecture। okay, I hope it is okay clear ma'am, how to solve, how to calculate ES and LF। okay okay ma'am, ओके मैम। okay, ठीक है, thank you, thank you ma'am. welcome।